If you have to define Golf Course Extension Road in one word, It's definitely the king of all the routes. आपको ध्यान रखना है कि अगर बारिश हो जाएगी तो वो भी अभी बहुत एक ट्रेंडिंग दिन चल होनी रहा होती है गौरव बारिश, वो तो हर जगह हो रही है, न्यूयॉर्क में भी हो रही है बारिश. है. What is happening on Golf Course Extension Road? Highest pre-sales in the market. Is there any project जो sold out नहीं है? Is there any commercial जिसमें footfall नहीं है? ट्रम्प टावर का नाम लिया ही है. If you can tell us कि वो ऊपर क्या बन रहा है? That is Vijay Mallya 2 upcoming. I just said it. It's the new glass crown of Gurgaon. But आज भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 3-3.5 करोड़ से कम का आपको कुछ नहीं मिलता. You are, one of very few women in this real estate industry. आपके friends ने या आपके relatives ने उन्होंने नहीं बोला कि यही एक इंडस्ट्री मिली थी. आप क्या कर रहे हो इससे? प्रॉपर्टी डीलर बन गए हो आप. Even if they buy the point, they would still need a validation from a male member. How do you compare Extension Road to SPR Road? If I say Golf Course Extension Road is the king, then SPR Road is definitely going to be the next tycoon. अभी द्वारका एक्सप्रेसवे टॉक ऑफ द टाउन है, उसको आप कैसे कंपेयर करते हो? Completely different है और मेरे हिसाब से कोई comparison नहीं है. Hi, and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर. मैं गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 5 माइक्रो मार्केट्स में डिवाइड करता हूं. गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर, न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे. आज की हमारी गेस्ट है नेहा रोहरा, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एक्सपर्ट हैं. और आज की कॉन्वर्जेशन से आई कैन बेट यू के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप अपना घर लेने की सोच रहे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, तो आज का कॉन्वर्जेशन में आपको बहुत मजा आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप ना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक्सपर्ट हो. यू आर डूइंग ट्रिमेंडस जॉब इन योर कंसल्टेंसी बिजनेस इन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. आपकी स्टोरी भी थोड़ी सी मेरे को फैसिनेट करती है दैट यू कम फ्रॉम अ कॉरपोरेट एंड एमएनसी कल्चर. वहाँ से अब आप रियल एस्टेट में आए हो एज अ रियल एस्टेट एजेंट. And I also feel that you are, one of very few women in this real estate industry. So इसीलिए मैं चाहता था कि हम लोग बैठें और आज हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को डीप डाइव करें. और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैं गुड़गांव को 5 माइक्रो मार्केट्स में डिवाइड करता हूँ. गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, एसपीआर, न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे. करेक्ट, यस. बट ओवरऑल ये सब माइक्रो मार्केट्स बहुत डिफरेंट हैं. तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे हाइप है या एक्चुअल में डिमांड है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे. Thank you so much, Gaurav. So yes, coming out of first of all, coming out of a corporate field, I have an 8 years of experience with a corporate MNC called Max Life Insurance. Very good. So एक corporate field से निकल के आना एक ऐसी दुनिया में जो highly male dominated है. It's a very aggressive market. It's very fast paced. Negotiations बहुत heavy होते हैं. So coming into the market where it's not very easy to put up as a woman in the real estate market. Not many of them are there, but I'm pretty sure as many of them are there, they are very highly oriented women that I've met in the industry. They are comfortable in this industry now? They're very comfortable. I have been very comfortable. Real estate has never caused me any problem in the name of women. They have been very humble to me. Okay. And it is still... but still we get some skeptical comments from family members, from related friends, that what exactly made you to leave corporate and get into the real estate market. So I do have a background. Like, I have my family business into real estate. My father and my brothers, they have been in the industry for about 25 years now. Wow.
So yeah, they have been into the developer part, the investor part. Okay. So nobody from the family was actually taking care on the new launch segments अच्छा. or actually doing the market Consultancy. segmentations, you know. Okay. They were busy in their own plotting and development and stuff. But when I got into the market, there is still a hustle, Yeah. you know, whenever. And पता है क्या, अभी अभी भी ऐसा होता है कि जब आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हो, अनलेस एंड अनटिल वो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है ना, हाँ, तो वो फिर भी समझता है मैं यही दैट यू नो, बोलने वाला था. हाँ, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ अच्छा होता है, इट गोज Yeah. वेरी स्मूथ, दैट दे अंडरस्टैंड दैट द वुमन इज वर्किंग इन द मार्केट Yeah. एंड दे हियर यू, दे लिसन टू यू, and they understand the viability of what you are talking. Yes. But the moment you get into a conversation with some businessmen, Yeah. specifically coming from a not Delhi market, you Some know, lala. some lala Seth Admi, they will be amused to see you in this market. That, you know, okay, first of all, I'm supposed to look at her. Second of all, I'm supposed to listen to her. And even then, even if they buy the point, they would still need a validation from a male member. Yeah. सही कह रही है ये, should I सबसे buy this? सबसे पहले तो वो आपको देख के बोलेंगे कि आप हमें प्रॉपर्टी दिखाओगे. हाँ, आप दिखाएंगे, आप क्या कर रहे हो, इसे प्रॉपर्टी डीलर बन गए हो आप. So it gets it is still very weird in the market, but no, I would still say You're the enjoying market, it. yeah, the market is totally mature Yeah. of having more and more women in the market. So I'm really happy. सो शुरुआत करते हैं. अभी ना सबसे ज़्यादा एक ही टॉपिक पूरे यूट्यूब पे हॉट हुआ है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने ये बोला है कि गुड़गांव में तो अब बबल बर्स्ट होने वाला है. गुड़गांव में जो है सारे इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र नहीं हैं, एंड हाउस ऑफ कार्ड्स है, कभी भी गिर पड़ेगा. सो अभी मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज हर किसी का व्यू पॉइंट ज़रूरी है. तो इट इज़ व्हाट डू यू हैव टू से, क्या लगता है आपको, बिकॉज आप एक्सटेंशन रोड पे बैठे हो, आप डेली क्लाइंट से मिल रहे हो. सो somebody who's not there in गुड़गांव मार्केट इज कमेंटिंग, तो थोड़ा सा अजीब लगता है. तो आई थिंक यू कैन टेल अस बेटर. I can definitely vouch about Golf Course Extension Road, गौरव. Okay. और ये आप भी जानते हो कि गुड़गांव मार्केट में ऐसा है क्या जो नहीं चल रहा है. इज देयर एनी प्रोजेक्ट जो सोल्ड आउट नहीं है? Yeah. इज देयर एनी कमर्शियल जिसमें फुटफॉल नहीं है? Yeah. There is a number of schools, all the top end, high end schools are there, high end hospitals are there, metro connectivity is there. तो बबल है कहाँ और ये कौन बोल रहा है, और क्यों भेड़ चाल की तरह उसी एक वर्ड के सब पीछे पड़ गए हैं कि बबल है और ये बर्स्ट होगा एंड दिस एंड दैट. एंड ऑल्सो अगर आप ये भी बोलते हो कि चलो इन्वेस्टर्स हैं, Yeah. 80% इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. Every project is sold out in a day or two. Yeah. The builders are making demand, they are creating the hype over it, Yeah. and then they are showing the sales, they are showing pre-sales, highest pre-sales in the market. बट ऑल्सो अब तो प्रीमियम भी चल रहा है. मतलब अगर Exactly. बबल होता हाँ, तो एक्चुअल डिमांड ना होती, एंड सिर्फ इनिशियल 5% 10% इन्वेस्टर पे करता, उसके बाद वो आगे पेमेंट भी नहीं नहीं देता. करता. बट अगर आज आप देखो आर्बर में रीसेल चल रही है, प्रिवाना साउथ, मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी क्लाइंट का फोन आया था, नाउ दे आर आस्किंग 60 लाख 70 लाख प्रीमियम प्रिवाना True. साउथ में, साउथ में जो With- SPR पे अभी लॉन्च हुआ है, जो कुछ नहीं है अभी SPR पे है. वहाँ. एंड यू नो, तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें रीसेल नहीं हो रही. तो कुछ भी नहीं है. बबल कैसे हो सकता है? It is definitely not a bubble. It is definitely, as per me, एक economic growth है, एक infrastructure growth है, जॉब क्रिएशन है. job creation है, commercialized sector बन चुका है आज की डेट में. There are so many careers in the industry. एग्री. There are so many retail spaces, office spaces are there. So many MNCs are coming with their corporate offices. यस, एग्री. Air India is here, American Expressway is here, and Zomato, Blinkit, so many brands are coming up here. There are so many Gurgaon grown, unicorns also. Yes, तो so इतनी many सारी startups. इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतने सारे यूनिकॉर्न्स हैं यहाँ पे, जो उनमें जो लोग काम करते हैं उनके सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे हैं. दे गेट हाईली पेड, दे गेट ई सॉप्स. जैसे ही अभी डिलीवरी का
आईपीओ हुआ था या हम्म पीछे पेटीएम का आईपीओ हुआ था, तो जितना स्टाफ था उन सबको ईसॉप्स मिलते हैं। ई सॉप्स मिलते हैं एंड ऑनेस्टली इसका एक और प्रूविंग पॉइंट है वेयर द करियर्स आर हाई, या जॉब सिक्योरिटीज आर हाई, यहाँ के रेंटल्स कितने हाई हैं। एग्री। अगर आप ये कहो कि बबल है, रेट बढ़े जा रहे हैं, तो ये भी तो देखो कि रेंट पे कितनी प्रॉपर्टीज चढ़ती हैं आज की डेट में, एग्री। वेयर द रेंट इज शूटिंग अप। या तो कहाँ से आ रही है दुनिया, वेयर इज द बबल। और रेंट में तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि एक हफ्ते से ज़्यादा प्रॉपर्टी बचती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, स्पेशली 2 BHK 3 BHK। एंड देर आर फ्यू मार्केट्स, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स में, यस, वहाँ पर अगर आज आज शाम को आप बोलो कि एक फ्लैट आया है रेंट पे, विद इन 3 days वो चढ़ भी जाता है। there is so much demand in the market. या Then I don't know how people are talking about there are only investors in the market. एक्चुअली होता क्या है कि डर बिकता है। Hmm. और Fear and जब greed. जब भी आप ऐसा कोई वीडियो बनाते हो तो वो वायरल होता है, और कंटेंट क्रिएटर को वही चाहिए। Yeah, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रोबेबली विल एग्री के बबल नहीं है, बट definitely कंटेंट not. क्रिएटर्स जो हैं वो बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि डर बिकता है। हाँ, पर सच्चाई जो है वो सबके सामने है। Yeah. बिल्डर्स अपनी सेल्स दिखा रहे हैं, देर Yeah. आर रिपोर्ट्स बाय एनारॉक, देर आर रिपोर्ट्स बाय CBRE, बाय Yes. नाइट फ्रैंक। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो इतने सारे हाई परसेंटेजेस दिखा रही हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गुड़गांव आगे बढ़ ही जा रहा है। Yes. प्री सेल्स बढ़ी जा रही हैं, लैंड पार्सल्स बढ़े जा रहे हैं, लैंड सेल्स बढ़ी जा रही हैं। Yeah. सो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट। अब तो हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे वेस्ट एंड आया है यस, अभी। पीछे मैं पढ़ रहा था कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे इवन बिगर ब्रांड्स लाइक ओबेरॉय एंड डीएलएफ आर अगेन बाइंग लैंड। अगेन बाइंग। Godrej is not limiting themselves, Yes. back to back अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। या जहाँ उनको जगह मिल रही है, जितना भी लैंड पार्सल मिल रहा है, स्मॉल बिग, they are buying. Why are they buying? Because they know that the demand is there and डिमांड इज they are देयर। taking that fund to supply, या कि उन्हें पता है कि उनके प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाएंगे। लाइक गोदरेज एस्ट्रा अभी आया था with a ticket size of about 10 to 16 CR. ओह It got sold out. वाओ, In रियली? days it got sold out. Astra is completely sold out. ऑन गोल्फ कोर्स रोड? Yes. एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल पार्सल। जैसे आपने बोला Yes. गोदरेज को तो अगर छोटा पार्सल भी मिल रहा है तो वो भी वो ले रहे हैं, Exactly. भले 1 टावर भले 2 टावर बने, बट वो उसको वैसे भी बना रहे तो हैं। समझदारी वाली बात तो वो लोग कर रहे हैं जो बना रहे हैं और बेच के निकल जा रहे हैं। या और एग्री। यहाँ पर अभी तक लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि बबल है कि नहीं है। सो होता क्या है कि लोग शायद इसको कंपेयर करते हैं जो यूएस में क्रैश हुआ था 2007 2008 के अंदर, तो लोग वेट कर रहे हैं कि शायद वैसा कोई क्रैश इंडिया में आएगा, बट वैसा सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। बहुत उनकी different है। इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है। We are still developing in Yeah. front of such countries. या आपके आसपास गुड़गांव में इतनी सारी NCR सिटीज़ हैं जो कि गुड़गांव में काम देखने भी आती हैं, घूमने भी आती हैं, या लेजर एक्टिविटीज़ करने भी आती हैं। Yeah. हर चीज़ करने आज की डेट में दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, जयपुर, सोना सब उठ के गुड़गांव आते हैं। Agree. इतना हाई ट्रैफिक एंड वाला प्लेस है ये। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट स्टिल कंसिडर गुड़गांव एज देयर लिवेबल स्पेस। और अगर हम टूरिज्म की आपने बात करी, अगर हम मेडिकल टूरिज्म की भी बात करें, यस, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। Correct. ऑल ओवर इंडिया से, आई वुड से ऑल ओवर एशिया से लोग आते हैं। करेक्ट। बेस्ट ऑफ स्कूल्स, बेस्ट ऑफ स्कूल्स आर देयर, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। दिल्ली में आज भी लोगों को पार्टी करनी होती है तो उनको होता है कि नहीं, सबसे गुड़गांव पहले। चलते हैं। एंड आई टेल यू सबसे ज्यादा फेमस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे क्या है? या एग्री। BYOBs. BYOBs। There are so many BYOBs on Golf Course Extension Road. आप रात को शाम को आओ, इट्स नो लेस देन दुबई सिंगापुर के नाइट लाइफ, बट अर्लियर आई थॉट कि वो थोड़े शेडी होंगे, नॉट एट ऑल, बिकॉज बाहर से हम देखते थे ऐसे लगता था यार यहाँ कौन ही जाता होगा। नॉट एट ऑल। लुक एट द लग्जरी कार्स दैट दे आर ब्रिंगिंग ओवर देयर। नंबर 1 कार्स आर देयर इन गुड़गांव। सो पूरा नाइट सीन बन जाता है वहां पे जाके। सो गुड़गांव में यूर सेइंग बबल नहीं है। व्हाट अबाउट एक्सटेंशन रोड? मतलब इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि एक्सटेंशन रोड पे कोई बबल का चांस है? आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल। Golf Course Extension Road, in fact, is, I would say, it's a better
ecosystem. Hmm. When you talk about ecosystem, when you talk about infrastructure, तो आप golf course extension road पे आपको सब कुछ मिलता है. Yeah, agree. From each and every ticket size. There are low rise, Hmm. there are plotted development, Yes. there are high rises, Yeah. Super luxury super apartment luxury like Trump arbor, Tower. Trump, yes. Yeah. And the ecosystem that M3M Golf Estate has given, Yeah, agree. epitome of resort living. सिखाया Agree. उन्होंने literally कि resort living कैसे होता है. Then Yes. other developers and builders started building golf course based theme, resort living style. Then there is MR which has MR done is there. international business लेकर आते हैं हमारे पास, Agree. इतने NRI clients लेकर आते हैं हमारे पास. Yeah. So best of schools हैं. And then you talk about the retail spaces. Worldmark is here, M3M IFC, the tallest Agree. building, glass facade buildings. So the golf course extension road for me today is the hotspot Yeah. for everybody. एंड आई थिंक टॉप जो हमने बोला 5 माइक्रो मार्केट्स हैं उसमें से शायद टॉप पे नंबर 1 पे शायद एक्सटेंशन रोड आएगा. I totally agree with this. प्रोबेबली Today. गोल्फ कोर्स रोड को भी मैं 1 पे नहीं रखूंगा नहीं. क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड अब सैचुरेशन पे आ गया है. वहां पर अब लैंड पार्सल्स भी नहीं बचे, वहां कुछ नई डेवलपमेंट का स्कोप भी नहीं बचा. एक्सटेंशन रोड इज देयर वेयर यू स्टिल हैव स्कोप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, बेटर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज आ रही हैं. अभी पीछे मैंने Universities. देखा किंग्स कॉलेज यूके भी एक्सटेंशन Yes, रोड पे yes, आया है. yes. देयर इज सो मच ऑफिस स्पेस, SCZ जो बन रहा है. तो हाँ. वो सारी डेवलपमेंट अभी और होनी है एक्सटेंशन रोड पे. गोल्फ कोर्स रोड से ऊपर मैं शायद आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को रखूंगा. Totally, I totally agree with it. तो एक चीज़ और बताओ, हम तारीफ कर रहे हैं तो साथ के साथ हम ये भी देखते रहें कि रियलिटी क्या है. तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रेट करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा था आज से 5 साल पहले क्या वैसा ही है या उसमें कुछ चेंज आ रहा है साथ के साथ? तो जब मैं 5 साल पहले आई थी तो ये लेन पूरी बंजारा मार्केट वाली होती थी, if you remember. Yeah. Completely full of nurseries, Yeah. garden nurseries and And बंजारा market. roadside shops. रोड सारी टूटी हुई कंस्ट्रक्शन थी. की वजह से सब टूटा हुआ था, बुरा हाल होता था. Yeah. 5 साल में जो आपने डेवलपमेंट देखी है, Hmm. there are so many high-end projects, Agree. so many cafes, so Yeah. many high-end retail brands. Yes. शॉपिंग सेंटर्स इतने ज़्यादा अच्छे बन चुके हैं, Yeah. वर्ल्डमार्क जैसे कैपिटल आ चुके हैं यहाँ पर. Agree. 5 साल में तो इतनी ज़्यादा स्पेस चेंज हो चुकी है ऑलरेडी Yeah. दैट इट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. तो आने वाले टाइम में जब ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ टेकन द पन टू extend metro stations, Yeah. extra clover extension roads are widening also. So इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब गवर्नमेंट खुद लेकर आ रही है, Hmm. तो इट इज़ ऑब्वियसली आप नेक्स्ट 5 years में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक ही मानी जाएगी. इट Yeah. विल अगेन बी अ बिलियनियर्स रोड, आई वुड से. बट सुनने में ही आता है रोड वाइडन होने वाली है, मेट्रो आने वाली है. अभी तक कुछ काम स्टार्ट तो हुआ नहीं, कहीं 2-3 साल से सुन रहे हैं कि आने वाली है, आने वाली है. सो देखो डेवलपिंग एरियाज है, आई Yeah. बिलीव डेवलपिंग एरियाज में जब इतनी कंस्ट्रक्शन आसपास चल रही है, Hmm. एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा. जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए इस बात को भी कि आपके लिए ही एक एनवायरनमेंट सेट हो रहा है. Hmm. तो हर काम अपने एक पेस से चल ही रहा स्पीड से है. चलेगा. गवर्नमेंट अपने पेस से एक काम लेकर चल ही रही है. जैसे अभी- म्यूनसिपैलिटीज हैं यहाँ पर, Yeah. इतनी सारी अच्छे RWAs डिफरेंट सोसाइटीज़ में बने हुए हैं. हर कोई अपना एक एनवायरनमेंट अगर बना के चलता है तो क्यों नहीं. अभी जैसे वाटिका चौक के ऊपर भी इन्होंने अंडरपास बना दिया, यस तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल गया काफी क्योंकि relief वहाँ है. पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होता था. यस तो ऐसा ही अभी इनका प्लान था कि हम पूरी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है उसको भी पूरा सिग्नल फ्री करेंगे और उसमें भी वाइडन करके अंडरपास और ओवरपासेस बनेंगे. करेक्ट. बट अभी वी आर जस्ट और उनकी होपिंग. न्यू कनेक्टिविटीज भी निकल रही है टुवर्ड्स Okay. सोना रोड, अच्छा. जो कि सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स के उस तरफ जाएंगी. ओके. So a lot many new developments on the road is also टुवर्ड्स सोना ऑल्सो. towards Sona Road as well. टुवर्ड्स सोना में जो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली Especially है. जो अरबाना के वहाँ से जो एक रोड निकलेगा, if Okay. you see, वो एक पूरा रोड आपका सोना के लिए नया सोना के कनेक्टिविटी लिए बन जाएगा. जाएगा. या आई एग्री. Yes, सो आई yes. थिंक थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है.
क्योंकि सुनने में ये भी आया था कि एक गुड़गांव का आउटर पेरिफेरी भी बनना है, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को टच करके सीधा मानेसर से कनेक्ट करेगा, करेक्ट विच विल कनेक्ट फरीदाबाद एक्सप्रेसवे टू मानेसर। करेक्ट एक गुड़गांव पेरिफेरी जिसको बोला जा रहा था, बट अभी उसका भी काम शुरू हुआ नहीं है। हो जाए। सो आई थिंक गुड़गांव में क्या होता है कि पहले प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर शायद थोड़ा सा लेट आता है। पर चलो प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे डिमांड आएगी वैसे सप्लाई भी चीज़ों की होती रहेगी। आई एम अ टोटली विनर ओवर देयर कि ओके गवर्नमेंट अपनी पेस से काम कर रही है। ओके ऑल वी हैव टू कीप इज फेथ एंड पेशेंस अबाउट इट कि सारी चीज़ें आज की डेट में ही एक ही साथ डेवलप नहीं हो जाती हैं, या हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जाती है। या एंड आई थिंक 5 सालों में हमने इतना ग्रोथ देखा है, तो अगले आने वाले सालों में ऑब्वियसली कंटिन्यूड ग्रोथ ही मिलने वाला है लोगों को। ओके। एंड ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि जहाँ डीएलएफ जाता है वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट और तेजी से काम करती है, ऐसा भी डीएलएफ होता है क्या? वेल एक्सटेंशन रोड पे यस, डीएलएफ इज ऑलवेज द किंग या एवरीवेयर दैट डीएलएफ गोज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना साथ साथ बना के ही चलता है। हम्म बट नॉनदलेस मेनी अदर ब्रांड्स have also made the infrastructure very widened. ओके MR has done very beautifully. अच्छा M3M has done a lot of work at Extension Road. अगर आप देखोगे कि एक्सटेंशन रोड पे जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाली रोड है, स्पेसिफिकली जो M3M गोल्फ एस्टेट वाली या जो रोड है, इट वॉज अ डेड रोड अर्लियर। तो वो पूरी रोड पे M3M का टी M3M पॉइंट ने भी आ किया। गया, अरबाना भी आ गया, एक या पूरा सेक्टर कमर्शलाइज्ड भी बन गया। एक इकोसिस्टम M3M भी बना के चलता है। ओके इट्स नॉट जस्ट DLF विच इज वर्किंग, ऑब्वियसली DLF इज द किंग। ठीक है, वो आ गया एक्सटेंशन रोड पे तो बाकी सारे ब्रांड्स के, बाकी सारे डेवलपर्स के काम भी ज़्यादा चल जाते हैं, बाकी सारी जगहों पे भी डिमांड ज़्यादा चल जाती उनका है, भी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ प्राइजेस गए। हाई हो जाते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट 17 पे आ रहा है तो DLF 18 पे आ जाता है, एंड देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज रेडी कि अब तो मैं 19 पे 20 पे आ सकता हूँ, एग्री बिकॉज मार्केट एग्री ट्रेंड सेट कर दिया है DLF ने या हमारे लिए। सो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेस्ट हो रहा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। एंड मेट्रो का भी चांस है आने का, It काफ़ी is टाइम से very much सुन रहे हैं। yes, it is very much proposed. 56 मेट्रो स्टेशन जो है, जो गोल्फ कोर्स जहाँ पे खत्म होता है, रैपिड मेट्रो वाला। यस, वो मेट्रोस आपकी वाटिका चौक से कनेक्ट होने ओ वाली है, एंड वाओ फर्दर proposed भी है, but that's अच्छा not still on the website, on the papers. ओके। It is still under the rumors that it is coming. So, if you have to define golf course extension road in one word, how do you see golf course extension road? Yeah, how do you explain it to someone? Golf course extension road, it's definitely the king of all the roads, so I would say Sheikh Road of Dubai, Oh, or the excellent. downtown of Dubai. Okay. It is definitely a party spot. So many party places are there, so many office Work, spaces is. work, play, and live. सारा कुछ. Yeah, so you vibe here, you work here, and you live here. So everything on Golf Course Extension Road, definitely the hotspot of Gurgaon. इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसको आप कंपेयर कैसे करते हो एसपीआर के साथ? अभी सर्दर्न पेरिफेरी रोड भी काफ़ी हॉट है, डीएलएफ के लॉन्चेस आए हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के अभी लेटेस्ट लॉन्चेस आए हैं। हाउ डू यू इन योर माइंड कंपेयर एक्सटेंशन रोड टू एसपीआर रोड? See, if I say SPR Road बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है, ओके but if I say Golf Course Extension Road is the king, like I said, then SPR Road is definitely going to be the next tycoon of Okay. Gurgaon. ओके I would say SPR is more infra backed up. ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टाउनशिप DLF लेकर आ रहा है, या 100+ का एक टाउनशिप DLF लेकर आ रहा है। On the opposite side of road, another listed player, Signature. Signature Global, is coming up with 100+ acre of Yeah. land parcel. Then there is Whiteland, there is Conscient, यस there is M3M already with other affordable अब तो ट्रम्प apartments. टावर भी आ गया। Trump Tower on SPR is coming. Yeah. Then Smart World is there. एग्री ट्यूलिप की एक अलग ही दुनिया है वहाँ पर ऑलरेडी। तो अगर आप देखो SPR रोड पर, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से भी ज़्यादा रोड पे वहाँ डिमांड ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वहाँ टिकट साइज छोटा है ना अभी है। सो Yeah. यस, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो फ्यूचर प्लानिंग आने वाली है, DLF इज ऑल्सो कमिंग अप विद द नेक्स्ट साइबर सिटी 2, ओह रियली राइट? यस। सो आप देखो कि इतने बड़े एरिया में
पर आप इतने सारे जगहों को केटर कर रहे हो, इतने सारे ब्रांड्स को केटर कर रहे हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेस को केटर कर रहे हो, तो आज जो जगह है डेफिनेटली वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है. ओके. वेयर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी एक लग्जरी स्टेट पे आ चुकी है. अच्छा. With Trump, with DLF, we already have NRI clients, we already have celebrity clients, already residing there. There are some big market influencers already, अच्छा. staying and vibing there at Golf Course Extension Road. But SPR still is on the side of investor Development. friendly. आज भी अगर कोई SPR रोड पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाएगा डेफिनेटली Okay. रॉकेट्स टच करेंगे. So you are saying कि SPR is more investor friendly and golf course extension road अगर आपको खुद रहना है तो आप golf course extension पे आ जाओ. आज आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रह सकते हो कंसिडरिंग आपका टिकट साइज Budget आपको होना सपोर्ट चाहिए. करता है तो. बिकॉज Okay. आज भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 3-3.5 करोड़ से कम का आपको कुछ नहीं मिलता. Yeah. इट गोज अप और टू वो भी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में. नहीं, इनफैक्ट लो राइज डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं गोल्फ कोर्स Okay. एक्सटेंशन रोड पे, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड है. Yes. Yes. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लो राइज डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज की डेट में आपको प्रोवाइड करते हैं, Ready to बट move in. दे ऑल्सो गिव यू अ स्मॉलर साइज. Yes. Agree. लिवेबल स्पेस बहुत कम है, हाई डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं. देर आर सम बिल्डर फ्लोज एज वेल इफ वी कंसिडर मोर स्पेस Okay. इन टर्म्स ऑफ गेटेड कम्युनिटीज. तो MR ऐसी गेटेड कम्युनिटीज बहुत सारी देता है, जैसे मार्बेला है, एमरल्ड हिल्स है. वहाँ पर आपको गेटेड कम्युनिटीज के अंदर प्राइवेट बिल्डर फ्लोज भी मिल जाते हैं Oh, अच्छा. विद स्पेशियस एनवायरनमेंट. तो कुछ लोग होते हैं, क्लाइंट्स होते बट हैं वो कि भी नहीं मुझे सस्ते नहीं है अब. सस्ते तो डेफिनेटली नहीं है. स्टार्टिंग आई थिंक 3-3.5 करोड़ से स्टार्टिंग है. बिल्कुल नहीं है. तो वही 3-3.5 करोड़ से आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे तो कुछ नहीं आता. Okay. बट आज आप SPR पे देखेंगे तो देर आर ब्रांड्स लाइक कॉन्शियंट, देर आर Yeah, ब्रांड्स yeah. लाइक अंटालियाज एंड गोल्फ हिल्स के नाम से ट्यूलिप में जो मिल जाते हैं, ट्यूलिप में बहुत मिल सारे मिल जाता है, जाते हैं. रीसेल में काफ़ी कुछ मिल जाता है वहाँ पर. सो येस, इन टर्म्स ऑफ लाइक आई सेड, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज की डेट में ही कर लो. SPR. अगर आपकी टिकट साइज आज आपको लग्जरी टिकट साइज अगर आपको सपोर्ट कर रही है, देन डेफिनेटली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड इज द प्लेस टू हैव अ Yeah. लाइफस्टाइल. सो अगर आपको 2500 या 3000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट चाहिए बट आपका बजट कम है तो गो टुवर्ड्स SPR. Yes. Okay. And also, how do you compare golf course extension to द्वारका एक्सप्रेसवे? क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी दुनिया में द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो रही है. उसको आप कैसे कंपेयर करते हो? कंप्लीटली डिफरेंट है. ओह अच्छा. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, दोनों एक डिफरेंट होराइजन है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टोटली ऑपोजिट है और मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है. Okay. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑलरेडी डेवलप्ड है, अच्छा. लग्जरी बिलियनेयर लाइफस्टाइल के साथ आता है. मेजर कनेक्टिविटी उसकी Yes. फरीदाबाद, सोना, NH8, साउथ दिल्ली. जयपुर, साउथ दिल्ली के साइड जाता है. वेर एज द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपकी नॉर्दर्न Yeah. पेरिफेरल से है, विच इज़ नॉर्दर्न दिल्ली, Agree. जिससे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, जिसे दिल्ली से कनेक्टिविटी चाहिए. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर मैं दिल्ली साइड वाले का द्वारका एक्सप्रेसवे की Yeah. बात करूँ स्पेसिफिकली, तो डिप्लोमेटिक सेंटर्स मिल जाते हैं. मोदी जी का IICC मिल जाता है. Yeah. द्वारका मिल जाता है जो कि ऑलरेडी एक हैबिटेटेड प्लेस है. Agree. राइट. मेट्रो कनेक्टिविटीज मिल जाती हैं, एयरपोर्ट कनेक्टिविटीज मिल जाती हैं. वहाँ नजफगढ़, नॉर्थ दिल्ली, जनकपुरी साइड वालों, वेस्ट दिल्ली साइड. वेस्ट दिल्ली साइड वालों के लिए इट्स अ बेटर कम्युनिटी टू लिव इन. बट क्या आज लिवेबल है वहां पे द्वारका एक्सप्रेसवे? No, नहीं. it's not. Yeah. It's really secluded even today. आप रात को वहाँ नहीं घूम सकते हो. शाम को there is only one mall, constant one mall, जो कि पूरा high footfall से है. Agree. इतने टाइम के बाद भी 5 साल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कहाँ से कहाँ आ गया है और 5 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ आया है. Yeah. There is a huge difference about it. Agree. And I think वहाँ पर अभी जो है टाइम और लगेगा. अभी उसको एक वेल डेवलप्ड माइक्रो मार्केट बनने के लिए शायद 5 years, मे बी 7 years. आराम से. आपका 5 क्या years I am horizon also है? expecting कि 5 years में, because प्लानिंग वहाँ पर भी बहुत सारी है. बहुत अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं,
बहुत अच्छे रिजॉर्ट लिविंग ब्रांड्स आ चुके हैं, लाइक एलान इज कमिंग Yeah. अप विद अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ओवर देयर विद ऑल द Whiteland is there. White Line with Marriott Residences is coming. Yes. M3M again, जो स्टार्टिंग पार्ट है, दिल्ली पार्ट है, वो तो सारा ही M3M SCDA जो उन्होंने M3M बनाया and हुआ है. Smart World के पास पूरा एरिया है वहाँ पे. Correct. And then MR came with Urban Ascent, so Yes. very good, beautiful project. Shobha is there, Puri is there. Godrej is there. I mean, Yes. brands तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है. और Agree. अगर आप रीसेल मार्केट की बात करोगे तो रीसेल में आपको बिगर साइजेस विद बेटर टिकट साइजेस मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. पर फिर आपका हराइजन वैसा होना चाहिए हाँ. कि आपको उस साइड पे रहना है जहाँ पर आपको डेली कनेक्टिविटी चाहिए, rather than having to be in the center of the गुड़गांव. बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे देख के या सुनी सुनाई बातों पे आके द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर दिया एंड नाउ दे आर स्टक. मतलब दिस प्रोबेबली इज माय फीलिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जिन्होंने ले लिया अब वो लेके बैठे हैं कि ठीक है यार, अब देयर इज नो चॉइस. बट अगर किसी ने उनको गाइड किया होता तो शायद वो वहाँ ना जाके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या SPR पे आते. देखो, इसमें गलती किसी की नहीं है. इट्स जस्ट द वे द मार्केट इज मूविंग, द वे Okay. इंफ्रास्ट्रक्चर इज मूविंग, हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग. मेरे हिसाब से जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने कम नहीं कमाया है, ओके. अच्छा खासा कमाया है. अगर मैं छोटा सा एग्जांपल अपना ही दूँ तो आई स्टार्टेड माय करियर विद सेलिंग एलान. ओके. Somewhere I sold it at 13-14,000. Oh, wow. Today it is reselling at 19,000. कुछ ही सालों में. 2 साल में. ओह वाओ. 2 साल में 5 साल का प्रीमियम लेना कोई छोटी बात तो नहीं है. यस. एंड इट इज इजीली ट्रेडेबल. ओके. ऐसा नहीं है कि रीसेल मार्केट वहाँ की नहीं चल रही है, या ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो ऑलरेडी जो पुरानी सोसाइटीज बनी हुई हैं उनमें कोई हैबिटेट कम दे है. आर ऑल फुल्ली ऑक्यूपाइड. यस, डेफिनेटली. आप And- शोभा देख लो, ओके. शोभा इज फुली ऑक्यूपाइड, उसके रेंट ही 60-70 हज़ार जाते हैं. वाओ. तो So- मतलब वहाँ पे भी रेंट पे चढ़ाना इजी है. ऑफ कोर्स इजी है, ओके. बहुत इजी है. बट अभी प्राइस में ना कंपैरिजन अगर हम करें तो या तो बिल्कुल बराबर आ गए हैं हाँ. या शायद द्वारका एक्सप्रेस पे लोग और ज़्यादा भी मांग रहे हैं. ये प्राइस स्टेबिलिटी है वहाँ पर अभी. अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक्सटेंशन रोड पे न्यू लॉन्च शायद आज 21-22,000 में आ रहे हैं, बट सिमिलर ही द्वारका एक्सप्रेस पे भी 21-22 मे बी 25 पे भी आ रहे हैं. आ रहे हैं. और तो- रीसेल वाले भी जो है, जो अभी पोजेशन पे खड़े हैं, वो भी 20-21 पे इजीली अवेलेबल है. ओके. बट तो वही मेरा क्वेश्चन वही है कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट सेम आ गया. अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो शायद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वाज एट 13-14,000, बट द्वारका एक्सप्रेसवे वाज एट 6,000, मे Yes, बी it 6,500. यस. बट आज हम कह रहे हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, उतनी डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुई, बट प्राइस दोनों के बराबर खड़े हो गए. प्राइस दोनों के बराबर भी खड़े हैं, बट मैं आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बताऊंगी. जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अपार्टमेंट्स हैं वर्सेस द साइजेस दैट द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्डर्स आर कमिंग अप, ओके. there is a difference. कैसे? There is a huge difference. So when you talk about, let's say, ticket price के ऊपर अगर हम बात करें, MR के प्रोजेक्ट्स एंड डिजी होम्स हैं, या. एक 2-3 BHK 1400-1500 स्क्वायर फीट का आता है, Yeah. 4 करोड़ के टिकट Yes, साइज पे. yes. 4 से 4.5 करोड़ का उसका टिकट साइज Agree. है. When you talk about द्वारका एक्सप्रेसवे, there are projects, especially गोदरेज प्रोजेक्ट्स अगर आप बात करो जो अभी पोजेशन पे खड़ा है, मेरिडियन, 2200-2500 के साइजेस आपको 4 करोड़ के ब्रैकेट में मिलते हैं. ओह So अच्छा. there is a bracket of bigger sizes also. अच्छा. That is also one of the reasons why people are looking for their livabilities more on Dwarka Expressway. मतलब जिसको बड़ा घर चाहिए, थोड़ा सा स्पेशियस रूम्स चाहिए, हाँ. वो फिर उधर की और तरफ जिनके जा लिए रहे हैं. ये एक हिंड्रेंस नहीं है कि मेरे को सेंटर ऑफ द सिटी में ही रहना ज़रूरी है, उनके लिए वो बिगर स्पेसेस द्वारका एक्सप्रेसवे वाले ज़्यादा अच्छे हैं. बट मेरे को लगता है अभी जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको शायद रोज़ इधर आना ही पड़ता होगा. अगर उनको अच्छे मॉल्स जाना है, अच्छे मल्टीप्लेक्स जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट्स जाना है, साइबर हब जाना है, हाँ.
तो उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। देखो कुछ ब्रांड्स का फर्क है आई वुड से, बट ऐसा नहीं है कि वहां पर कमर्शियल्स नहीं है. ओके। एलान हैज डन रियली वेल, ओके। AIPL इज कमिंग अप विद न्यू लॉन्चेस. या। M3M के बहुत सारे कमर्शियल स्पेसेस हैं, कैपिटल वॉक है. कॉन्शेंट ने बहुत अच्छा मॉल ऑलरेडी वहाँ पे डिलीवर किया हुआ है, बहुत ओके। बढ़िया फुटफॉल है वहाँ पे. सो रेगुलर मॉल जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती आज की डेट में वहाँ पर है. बट हाँ, अगर आपको हाई एंड स्पेसिफिकेशंस वाले मॉल्स जाना है देन उनके लिए द्वारका भी है. अच्छा। पीपल लाइक टू गो टू द्वारका मॉल्स एज वेल, क्योंकि वो ओके। भी दिल्ली कनेक्टिविटी भी उनको वहाँ से नियर बाय वेगस पड़ती है. मॉल एंड वेगस ओमेक्स मॉल एंड है, ऑल। पैसिफिक है, ओके। एवरीथिंग इज देयर, देन ओमैक्स इज कमिंग. सो यस. सो कमिंग बैक टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे मैंने देखा है कि बहुत अच्छे ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी आए हैं एंड बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे अभी ब्रिटिश एयरवेज ने भी अपना ऑफिस खोला है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन यस. रोड के यस. ऊपर. सो उसमें आपको अभी क्या विजिबिलिटी नज़र आ रही है? रेजिडेंशियल तो काफ़ी बढ़ गया, अब क्या ऑफिस स्पेस का भी टाइम आएगा? क्या रिटेल एंड ऑफिस स्पेस कमर्शियल भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अब बूम करेगा? बूम कर रहा है ओके। ऑलरेडी. ओके। ऑलरेडी कर रहा है. देर आर सो मेनी ऑफिस स्पेसेस व्हेन यू टॉक अबाउट मैग्नम टावर्स, देर आर या। MR टावर्स. M3M has built IFC business suits and whatnot. AIPL has AIPL built. है. Yeah. AIPL has done enormously well in terms of office spaces. Yes. There are co-working spaces like Agree. WeWork is there, you know. So do you suggest people investing in commercial या residential पे ही focus करना चाहिए? No, definitely commercial. Commercial is the new booming sector in Okay. Gurgaon for investors specifically. अच्छा. Investors specifically residentials पर restrict नहीं करने चाहिए as per me. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर इतने सारे कमर्शियल हब्स आ रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट्स आ रही है. व्हेन यू टॉक अबाउट रिटेल स्पेसेस, व्हेन यू Yes. टॉक अबाउट ऑफिस स्पेसेस, co-working spaces, so Yes. many corporate, so many branded houses are coming over here. So डेफिनेटली अगर आपका टिकट साइज एक रेजिडेंशियल पर जाने का नहीं है तो आप स्मॉलर टिकट साइज के साथ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी जा सकते हैं और जाना चाहिए. वेयर यू आर गेटिंग assured returns, Okay. pre-lease benefits, you know, many benefits are there when it comes to commercial benefits. So इतने सारे रेजिडेंशियल्स होने के आसपास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद कमर्शियल हब्स डेफिनेटली वर्क करेंगे. और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि आज एक्सटेंशन रोड पे शायद आपको 1.5-2 करोड़ में रेजिडेंशियल Easiest नहीं नहीं मिलेगा, मिलता, लेकिन बट कमर्शियल कमर्शियल्स मिल जाता है. डेफिनेटली विद हाँ. बेनिफिट्स लाइक assured returns. और उसमें क्या है, पिछले कुछ सालों में कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं आई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब शायद कमर्शियल का टाइम भी आएगा डेफिनेटली. एंड लोग अब रेजिडेंशियल से थोड़ा कमर्शियल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जब इतने अपार्टमेंट्स बनेंगे तो कमर्शियल तो उनको रोज चाहिए ही होगा. लाइक आई सेड गौरव, Yeah. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड किंग प्लेस है आज के टाइम में. देयर इज सो मच टू डू at Golf Course Extension Road. There are so many activities running around, seminars running around, Yeah. horse riding activities, and leopard trail activities, and whatnot is there at Golf Course Extension Road. Agree. So यहाँ ऐसा कोई बबल नहीं है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो काम नहीं करेगा. Yeah. So अगर ticket size smaller भी है, then one should definitely go with commercial investment. ठीक है. अब मुझे ना आपका टॉप पिक्स चाहिए होंगे कि आपको अगर चूज करना हो तो कौन से टॉप 3 प्रोजेक्ट्स हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में जो आप चूज करोगे फॉर एन अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन. गिव मी टॉप 3 पिक्स. It's a very difficult because Golf Course Extension Road is too wide and it's full of variety. लो राइज डेवलपमेंट्स भी हैं, हाई राइज डेवलपमेंट्स भी हैं, स्मॉलर टिकट साइज भी मिलती है, लार्जर टिकट साइज भी मिलती हैं. तो अगर लार्जर टिकट साइज के साथ जाओगे तो ऑब्वियसली रेडी टू मूव इन में नंबर 1 इज ट्रम्प ओवर हियर, ओके. Golf Estate, M3M Okay. Golf Estate. And number 3 I would still give to Pioneer ओके. because they पाइनियर did आया. exceptional work in the times एग्री. and they have given a lot of appreciation. So yeah, काफी बड़े बड़े उनके अपार्टमेंट साइजेस काफी साइजेस बड़े बहुत हैं बड़े हैं. सो रेडी टू Agree. मूव इन में आप वहाँ जा सकते हो. और कम बजट में 3. मिड सेगमेंट बजट, कम बजट तो देखो आता ही नहीं है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे. Yes. मिड सेगमेंट में अगर हम बात करते हैं तो आई वुड गो विद महिंद्रा लुमिनर अच्छा. नंबर 1. ओके.
Then there is Conchant Elevate. Okay. To some extent, Aereo has done Skyon really well, I believe. Okay. Grand Arc and Skyon, Okay. very livable spaces, good appreciation they have given again. So yes, Agree. with my top three picks, they will be there. Excellent. And your top 3 picks for apartments which are under construction. अगर किसी को अभी enter करना हो तो under construction में top 3 picks कौन से होने चाहिए? DLF Arbor, undoubtedly, number one would be DLF Arbor. Okay. Then there would be Smart World Edition. They अच्छा. came up with a very good theme of jacuzzis and private decks, and yeah, so Smart World Edition would be there. Number three, I would say Takeshwa, because Oh. they came up with a beautiful theme of Shiva. Yeah. And And 4-side open apartments. 4-side open apartment, one to a core. Yeah. So with Aravali views and whatnot. So very good project again. So yeah, Takeshwa. Okay, excellent. And your top 3 developers on golf course extension अभी road? हमें DLF का नाम लेना है कि नहीं लेना है? So मैं DLF को साइड में रखूं या एवरी टाइम नंबर वन पे वी हैव टू टॉक अबाउट DLF आर्बर जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया इंटायरली गोल्फ कोर्स So एक्सटेंशन DLF को हम ये रखते हैं कि वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल है उसके उसको बाद आउट ऑफ द लीग है वो आउट ऑफ द लीग है, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है. Top three developers, definitely Trump Towers, the glass facade that they Okay. have given. It is the epitome of what a glass crown can look like in Yeah. Gurgaon. M3M exceptionally done well with high Agree. rise and also with the low rise communities like Marbella and Emerald Estates and Yeah. Hills. So बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स MR ने करी है, M3M ने करी है. Yeah. So yeah, three of them, Trump, MR and M3M. M3M. अब आपने ट्रम्प टावर का नाम लिया ही है और ग्लास का नाम लिया ही है, सो इफ यू कैन टेल अस कि वो ऊपर क्या बन रहा है. Oh दोनों my God. ट्रम्प टावर को जब हम देखते हैं दूर से तो इट looks beautiful and It it looks looks fascinating. very fascinating. Every time my kids will say, पापा ये ऊपर क्या बन रहा है, मैं क्या पूछ के बताऊंगा. That is Vijay Mallya 2 upcoming. I just said it, but very positively I'm saying this, Okay. that Gurgaon today has their own new jewel. Okay. It's the new glass crown of Wow. Gurgaon, I would say. 1.5 lakh square feet of space, which is Really? owned by the developer, the builder family itself. Oh wow. And why not, Gaurav? I mean, why won't anybody do that? जिसकी जेब में पैसा है, कल को आप बताओ आपकी जेब में इतना पैसा होगा तो why won't you love to have that kind of lavish lifestyle of having a penthouse on a Trump Tower, Yeah. which is, I don't know, 3 floor or 5 floor, 5 stories. 5 stories, so why not having and owning that crown? मतलब on अगर your head? आपको गुड़गांव में कहीं पर भी हाईलाइट में होना होगा तो आपको दिख Definitely, जाएगा. it's a proud thing. Yeah. It's also a proud thing for all the Gurgaon residents also to say Agree. that yeah, हमारे यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग है जो शायद किसी और सिटी में कोई सोच भी नहीं सकता. Yeah. जैसे ऐसी कोई चीज बैंगलोर में करने भी का. जब बना था Yeah. तो आज भी उस बिल्डिंग को आप उस रोड को आप उस रोड को बिल्डिंग के नाम से जानते एग्जैक्टली हैं. तो आज हम बोलते हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ट्रम्प टावर है, बट एक्चुअली इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन, लाइक जहाँ पे ट्रम्प टावर है वो वाली रोड पे जाना है. सो यस. Agree. So moving forward, now I will, it will be more like a rapid fire. आपको 1 to 10 ratings देनी है. ठीक है. I will give you micro markets. We'll start with Golf Course Extension Road. And आपको यहाँ पे हमारी टीम उसको रैंकिंग भी करके दिखा देगी. Sure. But tell me, if you have to give ratings to Golf Course Extension Road, how would you rate lifestyle and amenities? I would say 8. Excellent. It's a celebrity lifestyle over here. It's a resort living lifestyle over here, and in the name of amenities, everything, Okay. brands to luxury showrooms and cafes and Shoppings. everything is available. So yes, 8. Affordability and price. Oh God, very less affordability. So 6 maybe. Okay. Top projects and brands.
Mostly all the brands are here already Okay. in terms of retail brands or corporate brands you talk about. So yes, So eight, eight eight, again. nine. Yes, yeah. Okay. Investment potential. It's relatively low as compared to other markets. So I would say still a seven. Okay. डिमांड टुडे, मतलब आज के टाइम पे डिमांड वहाँ पे. Highly demanded. It's definite nine. Oh, There is a lot of still. demand. Yeah, yeah. Okay. What about supply? How would you rate the supply? See, a lot many builders are still coming up. So supply abhi to in terms of 3-4 years we'll see a surge on it. Yeah. So supply would be a little less. Seven, I would say. And last, infrastructure. It is developing, and I am very highly positive about it. So as of now, it's on seven. Okay. But yeah, it will be. आपको ध्यान रखना है कि अगर बारिश हो जाएगी तो वो भी अभी बहुत एक ट्रेंडिंग दिन चल होनी रहा होती है गौरव है. बारिश, एक दिन के पीछे थोड़ी ना हम पूरे गुड़गांव को बदनाम कर देंगे। वो तो हर जगह हो रही है, न्यूयॉर्क में भी हो रही है बारिश। यस, एग्री, बट लोगों को मौका मिल जाता है गुड़गांव की बुराई करने के वो लिए. जो नहीं बैठे गुड़गांव में उन्हें ही मौका मिल रहा है। Okay, so we'll rate all these again, but Yes. now for Dwarka Expressway. Okay. Like you said, completely opposite. So lifestyle and amenities. Lifestyle and amenities are good in terms of the projects that has been the projects those are delivering. They're coming up with good, very good themes. But आज के टाइम पे आज के टाइम पे relatively low है, so yes, I would say seven. जो वहाँ पे रेडी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आज किसी को रहना हो तो. Seven. Okay. Affordability and price. Affordable projects are many over there, I Okay. would say. So, 8. Okay. Top branded apartments. Highly branded, but very few of them. So, 7. Investment potential. Highly. It's a very highly investment oriented place. Okay. So, yeah, 8, I would say. ठीक है. Demand today. Demand अभी relatively कम है. अभी कम है. Okay, so maybe a 5, maybe a 4. 6, I would say. Not Okay. not that low. इतनी भी कम नहीं है. Elan sold out है. Marriott almost Yeah. is sold out. So yeah, And supply. मेरे हिसाब से सप्लाई काफ़ी आने वाली है. काफी आने वाली है. बहुत सारे brands और बहुत सारे projects आ रहे हैं वहाँ पे. And So I think बड़े बड़े land parcels आने बड़े वाले हैं. land parcels है. Even Central Park is coming up over Yeah. there with a bigger parcel. India Bulls, Hero Homes. So brands, all of them are there. So supply is 9, I would say. Okay. In fact, the category of the apartments is very high. 2, 3, 4, 5 penthouses. Everything is there over there. Yes. And I would say from 3 crore till 13, 14, 15 crore सारे Easy. प्राइस मिल जाएंगे Yeah, आपको. yeah. Very easy. Yeah. Infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड. नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया है. इतना बढ़िया हाईवे बनाया है कि कनेक्टिविटी हर जगह पे मिल रही है. सो Agree. 9 इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ठीक है. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ डिड यू गेट इन टू रियल एस्टेट. वाई डिड यू चूज के यार अब कॉर्पोरेट जॉब बहुत हो गई, या उस टाइम क्या सिनेरियो बना, एंड हाउ डिड यू एंड अप इन गुड़गांव रियल एस्टेट. तो वो थोड़ा सा आप हमें जर्नी बताओ. कॉज होता है क्या है, I have so many friends, I know so many people in my complex जो बस सोचते ही रहते हैं. पिछले 5 साल से ना वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं एवरी वीकेंड दिल से, बस ये महीना मेरा लास्ट है, इस महीने मैं छोड़ दूंगा. ये हमेशा होता है. बट वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उनको बस ऐसे लगता है कि नहीं बस 1 साल और कर लूँ, नेक्स्ट ईयर तो पक्का छोड़ दूंगा. तो आपका वो कैसा हुआ, स्टेप कैसे लिया और क्या उस टाइम सिनेरियो बना? बेसिकली गौरव वहां से आता है जो कि एक वर्ड है ना, सिक्योर. वी आर इन अ सिक्योर जॉब. वो सिक्योर जॉब वर्ड से जब तक आपको डर लगना शुरू नहीं हो जाता है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक फिक्स्ड इनकम है विच इज कमिंग. Yeah. अगर मैं इससे हिल गया तो आगे मेरा कोई काम नहीं चला, या मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, then the burden Self-doubt. of responsibilities, self doubt obviously is there. So वो करते करते बहुत साल निकल जाते हैं, और मुझे भी निकले हैं. I have Okay. given 10 years to corporate, and I know how every year with every promotion, with every percentage hike, I used to say बस इतना ही मिला है, इसमें मेरा क्या होगा.
और इससे मैं क्या क्या कर लूंगी. बट आई आपका हैव, भी ऐसे ही था कि नेक्स्ट ईयर छोड़ दूंगी? हाँ हाँ डेफिनेटली. विद एवरी इंसेंटिव, विद एवरी प्रमोशन, आई यूज टू फील कि यार इतने से होगा क्या. ओके. सी, कॉर्पोरेट में देर इज अ गोल. ओके, एवरीबडी हैज अ गोल, बट देर इज वन गोल कि मुझे इस पोजिशन पे पहुंचना है. बट देर आर 10 other people who are running towards that same goal एग्री. with that same speed. या. तो आपको वो शेड्यूल मेंटेन करना, रोज सुबह 7 बजे उठ के भाग जाना, 8 बजे घर में घुसना, या. पर्सनल लाइफ की बैंड बजी होती है. देयर इज नो बैलेंस एट ऑल. Yeah. व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग टुवर्ड्स योर हेल्थ, हार्डली एनी कंट्रोल ओवर इट. द ओनली गोल इज दैट प्रमोशनल गोल, वहां पर पहुंचना है. द मोमेंट यू रियलाइज कि उस प्रमोशनल गोल पर पहुंचने पर एक्चुअली चेंज हो क्या जाएगा. there would be some extra bucks in your pocket, but then your responsibilities, your aims and your desires would be such that वो जो थोड़ा सा पॉकेट बड़ा है Yeah. वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा. सो ऑल दिस ड्रामा जब हो रहा था घर में, तो लाइक आई सेड माय फैमिली वाज देयर इन द बिजनेस. ओके. पहले कभी नहीं बोला बिकॉज इट वाज ऑलवेज अ मेल सेंट्रिक मार्केट. रियल एस्टेट ऑनेस्टली कभी भी इट वाज नेवर डिजाइंड to keep women in mind. कभी सोचा भी कभी नहीं नहीं था. सोचा that women would be entering such market, and it is not designed specifically like that. But now today the family walks up to me and says कि भाई now you come to the business only. It is a very mature market. It's a very respectful market. Yeah. And trust me, Gaurav, life changed. Life changed from Okay. head to toe. There was this 360-degree shift in your personality, in your working schedule, the way you see things. There is a complete different perspective today towards life. बट क्या जॉब में रह के आप गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी भी बना सकते हो? नहीं बना सकते. जॉब में रहकर आप हार्डली बना सकते हो. आपके EMIs का ही आप कैलकुलेशन करते बैठोगे. आज ये SOPs ले लेता हूँ, इतना सेव कर लेता हूँ, आज इस साल कर लूँगा, अगले साल उसे अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, फिर उसे Yeah. मल्टीप्लाई करूँगा. वो कैलकुलेशन ही चलती रहती है. यू चेजिंग नेवर गेम लगी रीच रहती है ओवर हमेशा. देयर. यस, इट्स ऑलवेज अ you're चेजिंग गेम. always a reacher to it, या. but never there to subscribe it कि हाँ मैंने I have conquered this market and I've bought this place, I've bought this desire of mine, I've bought this luxury car for myself. Hardly happens. बट अभी आप ये देखो कि कंपटीशन तो रियल एस्टेट में भी कम नहीं है. जैसे आपने बोला वहाँ पर एक प्रमोशन के लिए 10 लोग घूम रहे हैं, ऐसे यहाँ एक क्लाइंट के पीछे प्रोबेबली 20 एजेंट्स घूम रहे But हैं. at least you have a world to create. यस. You know, there is one ladder where you are supposed to, everybody is there on that same ladder. In business, you get the environment to create your own ladder. ओके. You have the creativity around you. यस. अपने तरीके से, अपने sources से, अपने, you know, it's a real world where you can just imagine what not and work towards your own goal. Yeah. You can make your own goal and you can achieve it the way you want to. Job again set KRAs है, set वही rules करना है. है. So job definitely tells you how to stay in the system, but what business tells you is to how to make the system, how to make the world around you. So that's the major difference. आप अपनी स्पेशलिटी बनाओ, अपनी एक निश मार्केट बनाओ. एंड यू नो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा गुड़गांव कैप्चर करना है या पूरे गुड़गांव को टेक ओवर करना है. नहीं, एक छोटे से एरिया में भी आप अच्छा अपना बिजनेस मैं क्रिएट तो कर गौरव सकते हो. बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को अभी इतना मोटिवेट करती हूँ that within your job circus game that you are playing, you can still get into passive income with your real यस. estate. एग्री. Why not? फ्रीलांसर्स की तरह काम करो. और इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है, इतना मेच्योर मार्केट है कि यहाँ पर काम लाने वाले को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है. एग्री. सो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर स्टक हो तो वहीं हो. रियल एस्टेट में कभी किसी के साथ हैंड्स ज्वाइन करके अगर पैसिव इनकम बनानी है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस एंड एवरीबॉडी शुड से यस टू इट. आई शुड से. बट आपके फ्रेंड्स ने या आपके रिलेटिव्स ने या वो कुछ कजन्स होते हैं ना, उन्होंने नहीं बोला कि यही एक इंडस्ट्री मिली थी और कोई इंडस्ट्री नहीं they मिली? were so skeptical about it. Real estate वहाँ करेगी क्या? What are you going to do इंटीरियर exactly? डिजाइनिंग कर लो. विजिट करने जाएगी, कैसे कराएगी विजिट? लाइक पीपल वुड बी चेकिंग यू आउट एंड व्हाट नॉट, दे विल बी टॉकिंग अबाउट इट. ओके. That how will you do it?
But no, with time, I have proven myself over here. You've become stronger now. I was always stronger and I went again. But nahi, the family is quite supportive around it. They knew Okay. that, she will do it. Okay. And you're not going back to corporate now? Not at all, never. कोई चांस नहीं है. Never. I'll be creating corporate environment in my office today, but I'm Excellent. never going to go back. So tell me, in one word, what is real estate to you? ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ और सबका आंसर बहुत डिफरेंट होता है. So अगर मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट तो एक क्या वर्ड है जो आपके दिमाग में आता है? Definitely, it's unstoppable. अच्छा. Unstoppable. The market is unstoppable, and the personal growth that this market has given to me, it's like not going back ever, and there are no limits to it. So yeah, it's unstoppable for So me. अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है. अभी अभी सिर्फ तो शुरुआत है. अभी तो Yes. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी बची हुई है. Of course. पिक्चर The अभी women in बाकी real है. estate, it's going to change the perspective of the market altogether. So now it's time for the most fun segment. ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन काम आएगी. Okay. So आपको एक प्रॉप मिली है. This one. This is a magical prop. Yeah. The segment is called the time machine. Time machine. अब आपको इसमें से देखना है और ये बताना है कि 2050 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आपको कैसी दिख रही है Oh और my क्या क्या God. होने वाला है 2050 में 25 साल बाद. This sounds interesting. Let's see. So, दिख रहा है? 2050, oh my God, it looks amazing over there. I see helipods. Okay. I see air taxis. Very nice. More glass facade towers. अच्छा. 20. और कितने ऊंचे? 200. 200, I'm sure. There are more clover leaves. There are more infrastructure development, Very highways, and whatnot. So 2050 is going to be another next Yeah. super beats. और आप क्या कर रहे हो 2050 में? मैं क्या कर रही हूँ? मैं शायद वो ग्लास क्राउन जैसा एक और अपने लिए घर बना रही हूँ. Definitely. Very nice, very nice. Thank you, Neha, very much. Thank you so for much coming. for having me, Gaurav. It was a pleasure. I had a great time, and Thank I'm you. sure audience will also have a great time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you.